Good evening, everybody. But today we have to start up with image formation in spherical lenses. But in the previous class, I think we had already done some common terms associated with lenses. और उसमें बच्चे हमने rules for image formation in convex lens भी complete कर लिया था. All right. So today we'll be beginning up with image formation in spherical lenses. Particularly, we are going to start up with image formation in convex lens. क्योंकि इसके रूल्स बच्चे हमने पिछले क्लास में किए थे. So we'll be picking this up first. So बच्चे, when you talk about image formation in convex lenses, okay, all right, so I'll be picking up different positions. अलग अलग मैं positions को pick up करूंगा, and then we'll be drawing the ray diagrams for each position one by one as we did in lenses. So the first, as we did in mirrors, वैसे ही same बच्चे हम क्या करेंगे, we'll be picking up image formation in lenses also. So बच्चे, the first position, image is at infinity. Image नहीं, object is at infinity. This is our first position, object at infinity. अब बच्चे, when you talk about object at infinity, that means object जो है वो लेंस से बहुत दूर है, उसकी पोजीशन जो होगी it is very far away. So बच्चे, as we did in mirrors, जैसे हमने mirrors में किया था, वही सेम चीज हम यहाँ lenses के लिए फॉलो करेंगे. I'll be picking up two light rays. All right, दो light rays मैं pick करूंगा. They will come parallel to the principal axis. Okay, this is the first light ray. All right, this is my second light ray. हमें कोई भी दो लाइट रे लेनी है जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. एंड बच्चे, व्हेन यू हैव टू शो रिफ्रैक्शन, यू विल शो इट फ्रॉम दिस डॉटेड लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. यहां से हमें रिफ्रैक्शन शो करना है. सो बच्चे, दिस विल कन्वर्ज टुवर्ड्स द फोकस बिकॉज convex lens is a converging lens. So light rays which are coming parallel to principal axis, and बच्चे, this situation or condition is for object which is very far away from the lens. All right, object is at infinity, you have parallel light rays and they converge towards the focus. Okay, so this is, ये मेरी direction है light rays की after refraction. All right, and this is my focus F. All right, this is my focus F. All right, so if you write down the characteristics, अगर आप characteristics लिखोगे image के, so first of all, the position is at principal focus of the lens, that is F. Okay, let's write down the characteristics जैसे हमने बच्चे mirrors के अंदर लिखा था. So the first characteristic that we'll write down is image is formed at the, okay, image is formed, a real image is formed at the focus. A real image is formed at the focus. What is its size? Size is very small. It is real image, but it is point size and it is highly diminished. Okay, image is point sized. Image is point size and is image is point size and is highly diminished ठीक है, जो आपकी इमेज है वो पॉइंट साइज है और बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड है. उसका जो साइज है इट इज वेरी स्मॉल. ऑलराइट, साइज इज वेरी स्मॉल, इमेज इज पॉइंट साइज एंड इट इज हाईली डिमिनिश्ड. ओके, so this is the image formed for object which is at infinity. Now we are going to draw the second position. First of all, let me just pick up the lens. Okay, all right, this is my lens. I'll just place it here. Okay, अब object beyond 2f, this is my second position. अब आपको क्या करना है,
you have to gradually bring the object nearer to the lens. So our second position is object beyond 2f. Okay, object beyond 2f. Object beyond 2f. Okay, this is my second position. Object is beyond 2f. अब अच्छा, what do we mean by 2f? 2f का मतलब है डबल ऑफ फोकस. अब अच्छा, इसमें हम C सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखेंगे as we did in mirror, but we will write 2f. That means it is double of focus and it is denoting the center of curvature. तो बच्चे what we have to do? I have to equally divide. ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से अगर मैंने फोकस बनाया, this is my f, alright, then इसका डबल लूंगा मैं, this is 2f. अब बच्चे what is 2f denoting? 2f is denoting center of curvature. तो बच्चे सिमिलरली आपको दूसरी साइड भी करना है. This is my focus और उसका डबल क्या होगा? 2f. alright, so f and 2f, it denotes what it denotes? It denotes focus and the center of curvature. तो f का डबल हम क्या लिखेंगे? We'll write it as 2f. Okay, so I have to place my object. Okay, I have to place my object at 2f. तो बच्चे यहां मैंने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया. This is my object just beyond 2f. alright, so बच्चे if you carefully notice, जो हमने पहली इमेज बनाई थी when object was at infinity, जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो at f फॉर्म हो रही थी. ओके, अगर आप यहां लेबल करना चाहते हो, यहां आप इसका डबल लिख सकते हो 2f. ओके, 2f. 2f means it is double of focus. All right, अरहम, इन क्लास 10th में हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारे पास लेंस है, इट इज आइदर इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव. इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव का क्या मतलब है? दोनों साइड पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स है, स्फीयर्स, दे आर ऑफ सेम साइज. स्फीयर्स आर ऑफ सेम साइज. बट बच्चे व्हेन यू गो टू क्लास 12th ऑप्टिक्स, उसमें आप पढ़ोगे कि लेंसेज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. प्लेनो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, जहां एक सरफेस प्लेन है. ठीक है, पर बच्चे हम आपके लेवल पे, क्लास 10th के लेवल पे हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों साइड पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, यानी सेम साइज का स्फीयर है दोनों साइड. इज दैट क्लियर राम? तभी मैं दोनों साइड पे f और 2f लिख रहा हूं. इज दैट क्लियर? ऑलराइट, ठीक है. तो बच्चे मैंने f और 2f लिखा है, वैसे ही मैंने सेम दूसरा नीचे f और 2f लिखा. तो बच्चे व्हेन यू विल प्लेस योर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, अब आपकी जो इमेज है वो इस f से आगे शिफ्ट होनी चाहिए, पर यहां छोटी रियल इमेज बनेगी. ओके, ये चीज का ध्यान रखना है. इट विल फॉर्म अ स्मॉलर इमेज. तो बच्चे वही सेम करना है. टेक वन लाइट रे फ्रॉम टॉप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, दिस विल पास थ्रू फोकस. इस लाइट रे को मैं फोकस से पास करूंगा. ओके, देन सेकेंड लाइट रे यू कैन पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. आप ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड पास कर सकते हो, या फोकस से पास करके उसे पैरेलल बना सकते हो. तो यू कैन टेक बोथ दी ऑप्शंस. आई विल टेक दी सेकेंड. पास इट थ्रू फोकस, मेक इट पैरेलल. ओके, मेक इट पैरेलल. ऑलराइट, और बच्चे जहां ये लाइट रे इंटरसेक्ट होंगी वहां आपका इमेज बनेगा. जहां आपकी रेज इंटरसेक्ट होंगी वहां बचे आपकी लाइट रे बनेगी. ओके, तो यहां आपकी इमेज बनेगी. बचे ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर कि जो इमेज बननी चाहिए छोटी बननी चाहिए ऑब्जेक्ट से. ओके, इमेज जो बनेगी बचे वो ऑब्जेक्ट से छोटी बननी चाहिए. सो इमेज फॉर्म्ड विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन f and 2f on the other side. ये मेरा फोकस है. This is my focus on the other side. All right, f and this is 2f. आपकी जो इमेज बन रही है वो f और 2f के बीच में बनेगी and it should be smaller than the object. यहां थोड़ी सी बड़ी लग रही है मुझको. It should be smaller. अगर आप बच्चे स्केल यूज कर रहे हो तो आपका बिल्कुल सही बनेगा इमेज. Okay, so the image formed is real.
A real image is formed. What are the characteristics? A real image is formed. A real image is formed between f and 2f on the other side. अब ये तो बच्चे अंडरस्टूड है क्योंकि रियल इमेज है, ये तो दूसरी साइड ही बनेगी. A real image is formed between f and 2f. Okay, image is real, so it is inverted. Okay, it is inverted. It is inverted and of smaller size. It is inverted and of smaller size and of smaller size than the object. ओके बच्चे, इसका साइज देखो. द साइज इज स्मॉलर. द साइज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज रियल, सो इट इज इन्वर्टेड. कोशिश हमें ये करनी है कि ये इमेज छोटी बनेगी और f और 2f के बीच में बनेगी. एज यू विल ग्रेजुअली शिफ्ट, द इमेज विल ऑल्सो शिफ्ट टूवर्ड्स 2f. ओके, इज दिस रे डायग्राम क्लियर बच्चे? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इज इट क्लियर? ओके, all right. Okay, chalo, now let's pick up the third image or the third object position. Okay, I think I will have to move on to the next page. yahan jagah kam hai. Okay, next position. All right, अब बच्चे next position is very interesting. जैसे हमने center of curvature पे जब रखा था object, तो बच्चे center of curvature पे इमेज बन रही थी. सिमिलरली अगर हम 2f पे अब ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज विल बी आल्सो फॉर्म्ड एट 2f. तो ये चीज याद रखनी है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम्स. द थर्ड पोजीशन इज ऑब्जेक्ट एट 2f. ऑब्जेक्ट एट 2f. अब अच्छा, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म 2f? 2f मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सो लेट्स से कि हमने अपना ऑब्जेक्ट यहां रखा. दिस इज माय ऑब्जेक्ट. अब अच्छा, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आपकी जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्टली सेम साइज की बनेगी और ऑपोजिट साइज पे 2f पे बनेगी. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, अब यहां थोड़ा सा डायग्राम को मैं ट्वीक करूंगा बिकॉज आई डोंट हैव दैट स्केल विद मी. सो आई विल ड्रॉ इट इन अ मैनर जहां मैं इमेज बिल्कुल सही बना पाऊं. ओके, दिस इज माई लाइट रे. This is my first light ray. Okay, so it will deviate through focus के through जाएगी. Okay, I want my image to be somewhere here. Okay, let me just extend this a bit. Okay, ये मेरी पहली light ray है. Then second light ray through optical center. बच्चे, optical center से जो light ray जाएगी, it will pass undeviated. It will pass undeviated. तो बच्चे जहां ये इंटरसेक्ट होंगे वहां आपकी इमेज बनेगी. ओके, एंड बच्चे दिस पोजीशन, ओके, दिस पोजीशन इज 2f, क्योंकि मैंने दूसरी इमेज जो है वो भी 2f पे रखी है. दिस इज 2f. इसका एग्जैक्टली हाफ करेंगे तो f बन जाएगा. दूसरी साइड पे बच्चे ये f है एंड दिस पोजीशन इज 2f. सो बच्चे, व्हेन यू कीप योर ऑब्जेक्ट एट 2f, जब आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे तो इमेज भी किधर बनेगी? इमेज विल बी ऑल्सो फॉर्म्ड एट 2f. एंड बच्चे, इट शुड बी ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. बिल्कुल सेम साइज बनना चाहिए. ऑलराइट, बिल्कुल सेम साइज होना चाहिए एज द ऑब्जेक्ट. इट इज लाइक सिचुएशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर मैं बच्चे इसकी अब डायरेक्शंस बनाऊं, दीज आर द डायरेक्शंस. ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड, पैरेलल वाली फोकस से. बच्चे आप फोकस से निकाल के भी बना सकते थे. इफ आई टेक इट फ्रॉम फोकस इट विल बिकम पैरेलल. तो आप थर्ड वाली भी यूज कर सकते हो. जो लाइट रे फोकस से आएगी, ओके, जो लाइट रे फोकस से आएगी वो पैरेलल होनी चाहिए. पर बच्चे आप देख रहे हो मेरा रे डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग स्केल. तो मेरा रे डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा. दिस इज द रीजन मैंने इसको पहले अपने आप ऐसे बनाया था. ओके, तो बच्चे, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स? अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f.
on the other side, a real image is formed on 2f. What about its size? It is inverted. It is inverted. It is inverted and of same size. It is inverted and of same size. It is inverted and of same size as the object. ऑलराइट, इस तरीके से इसको याद रखना है. ओके अनीशा सी, ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट क्यों नहीं डिविएट करती? बच्चे दिस इज समथिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड इन व्हेन वी डू ग्लास स्लैब. हमने ग्लास स्लैब छोड़ दिया था ना, तो ऑप्टिकल सेंटर पे एक छोटा सा ग्लास स्लैब की तरह स्ट्रक्चर बनता है. देखो अगर मैं इसको कट करूं तो इट इज लाइक अ ग्लास स्लैब. तो ग्लास स्लैब में क्या होता है बच्चे, जो लाइट रे आती है वो इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट होगी, जब वो इमर्ज करेगी तो वापस बाहर रिफ्रैक्ट होकर निकलेगी इन अ वे कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे है दे आर पैरेलल टू ईच अदर. पर बच्चे जब थिन लेंस होता है तो ये इफेक्ट ज्यादा नहीं होता, तो दे विल सीम नियरली पैरेलल टू ईच अदर. फॉर अ वेरी थिन लेंस, for a very thin lens, this effect is not visible. Okay, I'll just draw this to show you. Okay, let's say this is my glass slab. Glass slab अभी हमने किया नहीं है, तो यहां से बचे let's say light ray आई. Okay, this is my normal ray. What is going to happen? Rarer to denser, it is going to refract. Again this is normal. तो बच्चे जितने एंगल पे दोबारा इस तरीके से ये रिफ्रैक्ट होगी कि जो आपकी लाइट रे बनी है, जो आपकी लाइट रे बनी है, इट शुड बी नॉर्मल, सॉरी दे शुड बी पैरेलल टू द ओरिजिनल पाथ. ये मेरा ओरिजिनल पाथ है, ये रिफ्रैक्शन के बाद पाथ है. अब अगर मैं बच्चे इस लेंस को बहुत थिन कर दूं, इस स्लैब को मैं बहुत थिन कर दूं, तो बच्चे ये जो आप डिफरेंस देख पा रहे हो ना, वो डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल हो जाएगा. ऐसे रिफ्रैक्शन हुई, ऐसे. तो बच्चे धीरे धीरे इनके बीच में डिस्टेंस कम करते जाओ, इट विल बिकम नियरली पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल तो है, पर जैसे जैसे मैं थिकनेस कम करता जाऊंगा, ये जो डिविएशन है ना, डिविएशन बहुत कम होती जाएगी. देखो कितना फर्क पड़ गया, पहले से देखो कितना फर्क पड़ गया. आप इसको और थिन कर दोगे, ये डिविएशन और कम हो जाएगी फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ. तो बच्चे इन अ वेरी थिन लेंस, दिस बिकम्स वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश. दिस इज द रीजन वी से any light ray which passes through optical center, it will pass undeviated. But this is true only for a very thin lens. Is it clear, Anisha? Is it clear? अभी जब ये ग्लास स्लैब करेंगे ना, उसमें ये बात समझ आ जाएगी और क्लियरली. जैसे जैसे स्लैब थिन होता जाएगा बच्चे, डिविएशन आपको डिस्टिंग्विश करनी उतनी मुश्किल होती जाएगी. तो हम क्या मान रहे हैं कि जो बहुत थिन लेंस है, उसका जो बीच वाला पोर्शन है वो बिल्कुल ग्लास स्लैब की तरह है. ओके, यू कैन एक्चुअली डिवाइड द लेंस इनटू प्रिज्म एंड स्लैब्स. ओके, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एक्चुअली. ऑलराइट, सो यहां जो इमेज फॉर्म हो रही है बच्चे, 2f पे जब हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी, इट विल बी फॉर्म्ड एट सेम पोजीशन एज 2f. ऑलराइट, इट इज इन्वर्टेड एंड इट इज ऑफ द सेम साइज. चलो अब बच्चे करते हैं नेक्स्ट पोजीशन. अब हमें क्या करना है, व्हाट वुड बी आवर नेक्स्ट पोजीशन? वी हैव टू कम बिटवीन 2f एंड f. इधर आना है हमें. अब बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, योर इमेज इज गोइंग टू शिफ्ट. अब आपकी इमेज शिफ्ट करेगी बियॉन्ड 2f एंड इट विल बिकम लार्जर इन साइज. अभी तक इससे पहले छोटी थी, 2f पे इक्वल थी. अब आप 2f और f के बीच में आओगे, यू विल गेट अ लार्जर इमेज. सो object between f and 2f, this is our next position. Okay, object between f and 2f, object between f and 2f. all right,
ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f। अब क्या करना है बच्चे, आपको ऑब्जेक्ट को रखना है एफ और 2f के बीच में। पहले एक बार रख लेते हैं, लेट्स से दिस इज माय ओके ऑब्जेक्ट। आई जस्ट टेक अ स्मॉलर वन, ज्यादा बड़ा करूंगा तो इमेज बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी। ओके, I'll take a smaller one. Okay, this is my arrow which is representing the object. अब अच्छा, what do you want? You want a light ray parallel to principal axis. यहां गई, okay, it will pass through focus on the other side, okay, then light ray through optical center, it will pass undeviated, okay, ये तो parallel ही होती जा रही है। Let me just correct it a bit, थोड़ा सा correct करते हैं। ओके, ऑलराइट, फोकस यहां रखते हैं। ओके, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से अनडिविएटेड निकाल देते हैं। ये मेरा लाइट रे है विच इज पैरेलल, ओके, बिटवीन एफ। इफ माय फोकस इज हियर, ऑलराइट, हियर, ओके, सो ऑलराइट, अब मुझे लगता है शायद सही बन गया है। ओके, सो बचे, वेयर एम आई गेटिंग माई इमेज? I am getting my image where these light rays intersect. Just a moment. हो सकता है बच्चे हमें इसे थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना पड़े once we get the focus. Okay, all right. टेढ़ी बन रही है। ओके, दिस इज माई इमेज। बच्चे आपकी तो लाइन बिल्कुल सीधी बननी चाहिए, बट मेरे पास थोड़ा सा ओके थोड़ा सा मेरा जो ये इमेज है थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ओके, तो बच्चे आई विल जस्ट शो यू द डायरेक्शन ऑफ एरोज। ये मेरी डायरेक्शन है, ये मेरी डायरेक्शन है, ये मेरी रिफ्रैक्शन के बाद डायरेक्शन है, एंड दिस इज माय इनिशियल लाइट रे। ओके, तो बच्चे आई विल ड्रॉ द फोकस हियर एफ, और इसका डबल कर दूंगा यहां 2f। ओके, सिमिलरली ये मेरा f है, इसका डबल करूंगा तो 2f। ओके, तो बच्चे व्हाट इज हैपनिंग, द इमेज इज नाउ बीइंग फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट कहां आ गया है, ऑब्जेक्ट मेरा f और 2f के बीच में है, तो मेरी इमेज 2f के बियॉन्ड जानी चाहिए, एंड इट शुड बी लार्जर इन साइज, इट शुड बी लार्जर इन साइज। ओके, सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, अब हमारी इमेज शिफ्ट होगी। सो अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, a real image is formed, a real image is formed, a real image is formed, a real image is formed beyond 2f. Okay, a real image is formed beyond 2f, and bache what is its size, it is larger. Okay, it is inverted, it is inverted and of bigger size, it is inverted and of bigger size than the object. Okay, it is inverted and of bigger size than the object. ओके, इसका जो साइज है बच्चे वो बड़ा है और ये इन्वर्टेड है। ऑलराइट, इज दिस पोजीशन क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? याद ये रखना है बच्चे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज इज गोइंग टू शिफ्ट एंड इट इज गोइंग टू बिकम बिगर इन साइज। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ओके, ऑलराइट, ठीक है, चलो। सो बच्चे नेक्स्ट पोजीशन लेंगे अब हम।
we are going to place, okay, let me see if I have space here. Okay, I think I'll be able to draw it here. Chalo, our next position कहाँ होगी बच्चे? Our next position will be object is at focus. अब बच्चे, when you keep your object at focus, you need to get two parallel light rays. अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे, your image will be formed at infinity. इमेज इंफिनिटी पे बनेगी. इफ यू रिमेंबर, दिस इज हाउ वी डिफाइंड द प्रिंसिपल फोकस. अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूंगा तो आपकी जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल बननी चाहिए और उसकी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी. ठीक है, इस तरीके से हमें याद रखना है. तो बच्चे, आवर नेक्स्ट पोजीशन, next position, okay, image is at, sorry, object is at focus. Object is at focus. Object at focus. Sorry, focus नहीं लिखना, हमें लिखना है object at F, not focus. Object at F. ओके, ऑब्जेक्ट एट एफ. बच्चे, एफ पे है ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, सो आई विल बी पुटिंग दिस. ओके, दिस इज माय ऑब्जेक्ट. आई एम सपोजिंग दिस टू बी द फोकस. तो मैं यहां इसको ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूं. अब बच्चे, आपको क्या करना है? यू नीड टू गेट पैरेलल लाइट रेस, क्योंकि हमें इमेज इंफिनिटी पे बनानी है. ऑलराइट, सो दिस इज माय फर्स्ट लाइट रे. I will pass it through focus. ये मेरी लाइट रे चली गई. फिर दूसरी लाइट रे लूंगा ऑप्टिकल सेंटर से. It will pass undeviated. ओके, प्लीज मेक श्योर कि आपकी लाइट रेज जो है पैरेलल लगे. अब ये वाली जो मेरी लाइट रे है वो पैरेलल नहीं लग रही, मुझे इसमें थोड़ी सी दिक्कत लग रही है. ऑलराइट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू जस्ट यूज फर्स्ट दी ऑप्टिकल सेंटर वन. ऑप्टिकल सेंटर वाली को मैं पहले बना लेता हूं एंड देन आई विल ड्रॉ दिस पैरेलल टू इट. ओके, आई नीड टू गेट लाइट रेज पैरेलल, सो आई विल पुट इट एज फोकस. ये मेरा फोकस हो गया. ठीक है, तो बच्चे, दिस इज माय एफ और उसका डबल क्या होगा? इट विल बी 2f ऑन द अदर साइड. दिस इज माय फोकस हियर और इसका डबल 2f. all right, so bache, you will get light rays which are parallel to each other. okay, यहां से इमेज आई and they become parallel. अब बच्चे, इमेज कहां बनेगी? where is image formed in such cases when you get light rays parallel to each other? कहां बनेगी इमेज? image will be formed at infinity, क्योंकि लाइट रेज पैरेलल हो गई आफ्टर रिफ्रैक्शन. तो आप इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, व्हाट यू विल राइट? यू विल गेट अ रियल इमेज एट इंफिनिटी बिकॉज लाइट रेज हैव बिकम पैरेलल. द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक दैट यू विल राइट, image is highly magnified. या आप लिख सकते हो image is magnified or larger in size. Image is magnified than object. ओके, इसका जो साइज है बच्चे वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा? ओके, सी अनीशा सेंटर ऑफ कर्वेचर इसने नहीं लिख रहे, सी इसने नहीं लिख रहे, क्योंकि बच्चे हम वो ऑलरेडी मिरर्स में यूज कर चुके हैं. ओके, तो कई बुक्स में इसको C1 C2 लिखा होता है, पर हमारी एनसीईआरटी की बुक में इसको F लिखा हुआ है, FN2F, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग दिस नोटेशन. कई बुक्स में इसको C1 C2 भी लिखा होता है, तो बच्चे उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हमें समझना है बस रे डायग्राम कैसे बन रही है. F का डबल 2F, दोनों साइड पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. नोटेशन हम वो यूज कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में है. ऑलराइट, चलो अब बच्चे नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एट फोकस. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एट फोकस. दिस इज आवर नेक्स्ट पोजीशन.
सॉरी, ऑब्जेक्ट एट फोकस हो गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज आवर नेक्स्ट पोजीशन। अब अच्छा, दिस इज द ओनली केस, ओके, थोड़ा सा मैं लेंस को नीचे लेके आऊंगा, दिस इज द ओनली केस वेयर यू विल गेट, this is the only case in the convex lens where you will get a virtual image, okay, यहां आपको virtual image मिलेगी। तो मेरी जो next position है, object between F and O, object between F and O, ठीक है, object is between F and O, between focus and optical center, and बच्चे this is the only case where you will get a virtual image, otherwise हमेशा आपको रियल इमेजेस ही मिल रही हैं, ओके, ये चीज याद रखनी है। तो बच्चे आई हैव टू प्लेस माय ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, तो मैं लेंस के बहुत पास रखूंगा इसको, ओके, आई विल जस्ट प्लेस इट वेरी क्लोज टू द लेंस, ओके, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब बच्चे व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, हमें क्या करना है, आई हैव टू रीट्रेस दी लाइट रेस, मुझे लाइट रेस को रीट्रेस करना है, ओके। तो इसका ये मतलब है कि जब आप लाइट रेस को रिफ्रैक्ट करोगे, दे शुड नॉट बी पैरेलल, दे शुड डाइवर्ज आउट, तभी आप उनको रीट्रेस करोगे। तो मैं पहले लाइट रे ले रहा हूं बच्चे, दैट इज पैरेलल एंड इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस से लाइट रे चली गई। सेकेंड में लूंगा बच्चे ऑप्टिकल सेंटर से, अनडिविएटेड चली गई। एज यू कैन क्लियरली सी दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप बच्चे थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस देख पाओ, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट ओके, सो दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू मीट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, सॉरी, दे आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ज एट वन पॉइंट, रियल इमेज तो बनने नहीं वाली। So what I have to do? I have to pull them back. मुझे इनको रिट्रेस करना पड़ेगा। अब रिट्रेस कैसे करेंगे, ये मेरी लाइट रे है, ये मेरी रिट्रेस होगी ऐसे, एंड दिस इज माय लाइट रे, इसको मैं रिट्रेस करूंगा, ओके। बच्चे जहां ये लाइट रे आपकी रिट्रेस होके मिलेंगी, वहां आपकी इमेज बनेगी, वहां आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ऑलराइट। So here you will be getting your image, ये वाली position, okay। So बटे you are getting, बच्चे आपको क्या मिल रही है, you are getting a virtual magnified image, just a moment, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, okay, so you are getting a virtual magnified image behind the lens or on the same side as the object, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे आपको क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। तो बच्चे ये मेरी इनिशियल डायरेक्शन है, एंड दिस इज माय इनिशियल सॉरी रिफ्रैक्टेड रेस। तो बच्चे ये कहीं भी पीछे तो सामने तो मिलने नहीं वाली, सो व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज माय एफ, दिस इज 2f, दे आर नॉट गोइंग टू मीट इन फ्रंट, तो यहां तो चले गए, यहां f और यहां 2f, ओके, ऑलराइट। तो बच्चे यू विल बी गेटिंग अ वर्चुअल इमेज, आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, ठीक है। सो बच्चे दिस इज द ओनली केस, दिस इज द ओनली केस इन कॉन्वेक्स लेंस वेयर यू गेट अ वर्चुअल इमेज। बच्चे इनके लिए एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, यू कैन एक्चुअली सी लेंसेज, यूज ऑफ लेंसेज टू ड्रॉ रे डायग्राम्स, लेंसेज को हम फोकस करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके लिए बच्चे पूरा प्रैक्टिकल फिजिक्स लैब में इसके लिए इक्विपमेंट होता है, यू कैन एक्चुअली मेजर फोकस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप इमेज डिस्टेंस स्केल पे मेजर कर सकते हो, जहां आपकी शार्प इमेज बन रही है उस हिसाब से हम इसको एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं लैब में, ओके। तो बच्चे what are the characteristics of the image formed there, यहां आप क्या लिखोगे, you get a virtual magnified image, a virtual highly magnified, for this position object between f and o, हमें क्या मिल रहा है, you get a virtual magnified image, you get a virtual
magnified image is formed. A virtual upright and highly magnified image is formed. And बच्चे this is the only case, ये सिर्फ एक ही केस है जहां आपको कॉन्वेक्स लेंसेज में वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज मिलेगी, अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज. बच्चे दिस पोजीशन इज यूज्ड इन हैंड लेंसेज. जो हम हैंड लेंस यूज करते हैं उसमें ये पोजीशन यूज होती है. हम लेंस को ऑब्जेक्ट के बहुत पास ले जाते हैं तो उसकी बड़ी इमेज बनती है एंड वी आर एबल टू सी दी मैग्निफाइड इमेज. ऑलराइट, तो बच्चे यहाँ आपके कॉन्वेक्स लेंसेज की सारी इमेजेस जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं. ओके, अब बच्चे वी विल क्विकली मूव ऑन टू इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंसेज. ओके, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंसेज. तो बच्चे उसमें जो रूल्स हैं सिमिलर हैं जो हमने प्रिंसिपल फोकस के लिए किए थे यूज. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी क्विकली पिकिंग अप द रे डायग्राम्स. ओके, तो बच्चे इसमें सिर्फ 2 ही रे डायग्राम्स है जो हमें करने हैं. सिर्फ 2 रे डायग्राम्स ही बनेंगे इसमें कॉनकेव लेंसेज में. ओके ओके, फर्स्ट पोजीशन इज, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट पोजीशन इज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. यू नीड टू रिमेंबर बच्चे कॉनकेव लेंस में कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगी, इट विल ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज. सो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to bring 2 light rays which are parallel to each other. Okay, 2 light rays which are parallel to each other. This is my first light ray. This will diverge out. Just a moment, light ray parallel नहीं लग रही थी. Okay, this is my light ray which is parallel to principal axis. ये बाहर diverge हो गई. अब बच्चे what you have to do, you have to retrace, जैसे हमने फोकस डिफाइन करने के लिए किया था. तो बच्चे सिमिलरली ओके, एक और लाइट रे जो हम यहां से बाहर डाइवर्ज करेंगे. ओके, आई जस्ट डाइवर्ज दिस आउट. मुझे 2 लाइट रेज चाहिए. ओके, ये मेरी डाइवर्ज हो गई. अब मैं इसको क्या करूंगा, आई विल इंटरकनेक्ट. ओके, ये मेरी लाइट रे आई पैरेलल. सो 2 लाइट रेज विच हैव कम पैरेलल, दे विल डाइवर्ज आउट. और बच्चे यहां जो फोकस है यहां आपकी इमेज बनेगी. सो इट इज अ वर्चुअल इमेज. बच्चे दिस रे डायग्राम वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन व्हाइल डिफाइनिंग द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस. ओके, तो बच्चे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी यू विल गेट योर इमेज एट एफ पे आपको इमेज मिलेगी. दिस इज माई 2f. ऑन दी अदर साइड आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, f एंड 2f. सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट f. ऑलराइट, तो यहां कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे बच्चे, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट f. Okay, a virtual image is formed at f. All right, it is point size. It is point size and highly diminished. It is point sized and highly diminished. बच्चे बहुत छोटी इमेज है ये. It is point sized and highly diminished and highly diminished image. ठीक है, अब बचे सेकंड पोजीशन. जैसे बचे हमने कॉनकेव मिरर्स में किया था वही सेम जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में किया था वही सेम कॉनकेव लेंसेज में यू ओनली हैव 2 पोजीशंस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और ऑब्जेक्ट जस्ट बियॉन्ड दी लेंस. इसमें 2 ही पोजीशंस बनेंगी. ओके, सो आई विल बी जस्ट पिकिंग अप दी सेकंड पोजीशन.
Okay, this is my going to be my second position. Object beyond या object just beyond the lens. अब बच्चे कहीं भी रखो इसको, तो this is my second position. Object in front of the lens भी लिख सकते हो बच्चे, in front of the lens. I'll just shift this a bit. Okay, object in front of the lens. तो बच्चे if you see carefully, आपको क्या करना है, आप you have to place an object. आप कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हो. ओके, वर्चुअल बन रहा है, जस्ट अ मोमेंट. ऑलराइट, यू कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एनीवेयर. ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपकी लाइट रे आई पैरेलल. ओके, इट विल डाइवर्ज आउट. और ये डाइवर्ज कैसे होगी, अपियरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. ओके, देन यू कैन टेक अ सेकेंड लाइट रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. यहां से ऑप्टिकल सेंटर से ले गए आप लाइट रे सीधी अनडिविएटेड. तो बच्चे जहां यहां इंटरसेक्शन हो रही है, यहां आपकी इमेज बनेगी. यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज हियर. हियर इट इज. ओके, ये एरो थोड़ा सा बड़ा. ओके, दिस इज माय वर्चुअल इमेज. जहां आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी. ओके, सो बच्चे दिस इज फोकस F. इसको डबल करके हम यहाँ 2F लिख देते हैं. तो बच्चे अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करोगे, इमेज हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, बस उसका थोड़ा सा साइज बड़ा होगा. बट इमेज फॉर्म विल बी ऑलवेज स्मॉलर इन साइज. कभी भी बड़ी इमेज यहां नहीं बनेगी. ये चीज हमें याद रखनी है. तो बच्चे ऑब्जेक्ट इमेज कहां बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड. ओके, a virtual image is formed. Okay, a virtual image is formed. A virtual image is formed. A virtual image is formed. Okay, and it is of very small size. It is of small size लिखते हैं, very ना लिखो. It is of small size या smaller size compared to the object. Size compared to the object. बच्चे it is a virtual image. तो ये हमें लेंस के अंदर फॉर्म होती हुई दिखाई देगी. इट इज अ वर्चुअल इमेज, इट इज नॉट अ रियल इमेज. ये स्क्रीन पे नहीं बन सकती. इट इज अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एंड इट इज ऑफ स्मॉलर साइज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट साइज. ठीक है, तो बच्चे दीज आर दी ओनली टू पोजीशंस दैट यू विल बी गेटिंग इन कॉनकेव लेंसेज. दैट्स इट. ज्यादा पोजीशंस किसकी हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज की. कॉनकेव लेंसेज में सिर्फ 2 ही पोजीशंस हैं. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, तो बच्चे ये सारे जो आपके रे डायग्राम्स हैं, दे आर डन, दे आर कंप्लीटेड. ऑलराइट, सो अब हम बच्चे क्विकली जो है यूज ऑफ लेंसेज. ओके, यूज ऑफ लेंसेज डेली लाइफ में हम इन्हें कहां कहां यूज करते हैं वो लिखने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू टॉक अबाउट यूजेस ऑफ लेंस, कहां कहां हम इसको यूज करते हैं, तो बच्चे सबसे पहले है they are commonly used in microscopes, telescopes. Okay, commonly used in telescopes, microscopes to see magnified images. बच्चे I think I don't need to explain what is the use of a telescope. टेलीस्कोप से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वहां लेंसेज उनको मैग्नीफाई कर देते हैं. माइक्रोस्कोप में भी बच्चे हम जो छोटी चीजें उनको मैग्नीफाइड देखते हैं. अरहाम, आई थिंक कॉनकेव मिरर और
कॉन्वेक्स मिरर के तो प्रैक्टिकल हैं, आई डोंट थिंक सो लेंसेज के प्रैक्टिकल्स आपको हैं। लेंसेज के प्रैक्टिकल +2 ऑप्टिक्स में आते हैं। ऑल राइट, ओके। So commonly used in telescopes, microscopes to see magnified images. All right. उसके बाद है बच्चे सेकंड इसका यूज का है, इट इज ऑल्सो यूज इन हैंड लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कहां यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन हैंड लेंस, हैंड लेंस टू मैग्निफाई थिंग्स। ऑलराइट बच्चे, both types of lenses, whether convex or concave, they are also used in spectacles. Lenses are also used in spectacles. ठीक है, लेंसेज को बच्चे हम स्पेक्टिकल्स में भी यूज करते हैं। जिनको आईसाइट वगैरह की दिक्कत होती है बच्चे, लेंसेज को हम स्पेक्टिकल्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे कुछ कॉमन यूजेस हैं लेंसेज के। व्हेन वी विल डू ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो बच्चे उसमें डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई है, उसके अंदर आपको लेंसेज की प्रैक्टिकल यूटिलिटी आएगी। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर? ओके, ऑलराइट। सो बच्चे वी आर थ्रू विद रे डायग्राम्स एंड लेंसेज। जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पिकअप करना है दैट इज लेंस फॉर्मूला। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो विल बी पिकिंग अप लेंस फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल्स एसोसिएटेड विद इट। आई होप जो बच्चे मैंने वर्कशीट आपके साथ शेयर की थी, ओके, जो वर्कशीट मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ओके, सिमरन, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के साथ पैरेलल क्यों होती है बच्चे? इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर, ग्लास, एयर। तो A2 ग्लास जा रहा है, तो बच्चे A2 ग्लास में जितनी बेंडिंग होगी उसी हिसाब से जब ग्लास टू एयर में जाएगा तो उसी हिसाब से बेंडिंग होगी पर्टिकुलर एंगल के लिए। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा? यू विल गेट अ पैरेलल रे, but it will be deviated from its original path.